Yeah, ma'am. Can start now. Okay, all right. Thank you. Just 1 second, 1 second. Ji. Yes, so in the previous class, we studied about the basic of food, what is food, what is nutrition, what are the functions of food, and also the important health parameter or test. So in case anybody has a confusion in the previous class, whatever I have taken the topics, we can discuss at the last. इस क्लास के बाद में हम प्रीवियस क्लास का अगर कोई टॉपिक आपको पूछना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क दैट. Today I'll be taking up a new topic which is almost, some content of the old topic is also there. A new unit entirely, that is what is balanced diet, what are food groups, and how do we actually understand the nutritional requirement of any person. So now coming to what is a balanced diet. So balanced diet is a diet which contains all the nutrients in required amounts and proper proportion. इसका मतलब एक बैलेंस डाइट वो है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स करेक्ट अमाउंट में हो और सारे न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट हो और करेक्ट अमाउंट में हो. Now the thing is that all nutrients, I think all of you know by now, all of you know the major nutrients are the macro and the micronutrients. Now, what should be the proportion? The proportion is decided by food group and the RDA table, which I'm going to take after this. So I hope by now the balanced diet concept is clear. Balanced diet means a diet which provide all the nutrients. It means अगर आप सुबह खाने में ब्रेकफास्ट में रोटी और सब्जी ले रहे हैं, okay, it still is not completely balanced in some sense. ओके हमारे इंडियन डाइट में क्या बैलेंस होगा. एक वेजिटेरियन डाइट का मैं एग्जांपल बोल रही हूँ. डाइट में रोटी होगी, दाल होगा, ओके, सब्जी होगी, सैलड होगा. That's because dal is giving you protein, roti is giving you carbohydrates, sabji is giving you fiber and vitamins. All right, and if you add curd, that is going to give you probiotics. So this is actually a balanced diet. प्रॉब्लम क्या होती है, व्हाई आर वी स्टडिंग बैलेंस डाइट? इट्स नॉट जस्ट अ डेफिनेशन. इसको एक न्यूट्रिशनल प्लान में एक बैलेंस डाइट बनाना इट्स इटसेल्फ इज अ चैलेंज. आप ध्यान से देखिएगा पूरे दिन में वंस यू स्टडी दिस यूनिट कि हम लोग का हर मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फूड ग्रुप्स. Now, based on which proportion are we going to, choose? हम अलग-अलग तरह की foods के बारे में, but why should we choose all these? And what should we choose? This is the main question. Now, as first is the energy yielding food. It means why do we need? We are working, we need energy. तो एनर्जी के लिए हमें फूड चाहिए ताकि हमें वो एनर्जी कांस्टेंट सप्लाई करता रहे. एंड दैट इज व्हाई वी टेक डाइट व्हिच इज जनरली हायर एज कंपेयर टू अदर थिंग्स इन कार्बोहाइड्रेट. उसके बाद फॉलोड बाय दैट फैट गिव्स अस द एनर्जी. सो बेसिकली एनर्जी यील्डिंग फूड्स क्या होते हैं? मेनली कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फॉलोड बाय फैट, क्योंकि फैट इज ऑल्सो वेरी डेंस इन एनर्जी.
बट उसकी क्वांटिटी हम डाइट में इसीलिए नहीं ज्यादा रख सकते बिकॉज दैट कैन कॉज अदर कॉम्प्लिकेशन लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीज, लिपिड के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. दैट मेजर energy yielding foods are carbohydrates. And from where do you get these? अब अगर मैं कहूँ मुझे कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो मुझे कहाँ से मिलेगा? We get it from cereals. Cereals यानी आपका रोटी है, चावल है, millets है, जौ है, बाजरा है, and roots and tubers. जैसे कि जमीन के नीचे जो रूट्स एंड ट्यूबर्स वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे आप आलू हो गया, आपका शकरकंदी हो गई, बीट रूट हो गया. Okay, these all will give energy in the diet. And above all, the most easy energy giving food all of you must be knowing is sugar. जो आपको सबसे easily sucrose, glucose दे देता है. So that gives basically energy followed by fat. Fat also gives energy. आप किसी भी खाने को dense बनाना है, energy ज़्यादा बढ़ानी है उसमें, और आप quantity नहीं बढ़ा सकते. Now this is very important aspect. जब हम किसी पेशेंट को देखते हैं, हमको किसी आईसीयू में कोई स्पेसिफिक डिजीज में एनर्जी बढ़ाना है, तब हम फैट को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं दे सकते हैं. हम आप एक कटोरी से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, तो हम उसको एनर्जी को बढ़ाने के लिए वी वुड इंक्लूड फैट इन दैट. So these are energy yielding foods. Next is body building foods. It means जो हमारी बॉडी के ग्रोथ में, मसल्स ग्रोथ में, डेवलपमेंट में हेल्प करे, those are known as body building foods. And ये कौन से sources से मिलता है? That's from milk, egg, meat, fish. Basically any protein rich food helps in body building. Now if we take an example of vegetarian people, they don't take egg, meat and fish. So where do they get their proteins from? They get it from pulses, oil seeds and nuts. Okay, so pulses mean dal. आपको दाल से मिलेगा. Oil seeds like soybeans आपको मिल जाएगा. Nuts like बादाम से आपको बॉडी बिल्डिंग में हेल्प होगा. Walnut से होगा. अखरोट है, cashew nuts है. These are all body building foods. तो कुछ स्पोर्ट्स पर्सन जैसे जो सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते हैं, वो लोग ये सब लेते हैं. दे टेक of different kind of seed like sunflower, pumpkin, flax seeds, ये सब लिए जाते हैं. These also help in bodybuilding. So this is the second category. Basically all protein foods are included in the second category. And then comes the protective food category. Basically these are also rich in proteins, but majorly they give you vitamins and minerals, and that is why they are known as protective. Protective means ये आपको किसी भी डिजीज से आपकी बॉडी को बचाएंगे. मोस्टली नॉन वेजिटेरियन फूड्स में होता है अच्छा विटामिन, कुछ विटामिन्स लाइक फॉर एग्जांपल B12, विटामिन D. These are present in milk, egg, fish, and these are known as high biological value proteins. Why do we call these high biological? अब अगर और मीट के प्रोटीन को, तो डेफिनेटली मीट का प्रोटीन ज्यादा अच्छा होता है. अच्छा इन द सेंस वो बॉडी में ज्यादा अवेलेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है. जबकि दाल जो लेंगे, तो अगर आप उसमें 100% दाल से प्रोटीन चाहेंगे तो आपको सिर्फ 60% मिलेगा, लेकिन वही चीज आपको नॉन वेज सोर्स से 80% मिलेगी. तो ये है बायोअवेलेबिलिटी. ऑल्दो बाकी फैक्टर्स अलग हैं कि नॉन वेजिटेरियन में पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा होता है, वो फैट में बहुत हाई होता है, इसीलिए कहा जाता है कि वेजिटेरियनिज्म इज बेटर, बट बायोअवेलेबिलिटी प्रोटीन की नॉन वेजिटेरियन फूड्स में ज्यादा है. एंड द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव फूड्स आर green leafy vegetables. Green leafy vegetables and foods give us lot of vitamins which we require otherwise in our daily routine. So I hope you all understand now. These are three classification of food: energy yielding, body building, and protective. Now coming to the food pyramid, we are talking about balanced diet. बैलेंस डाइट मैंने आपको बोला कि बैलेंस डाइट वो चीज है जिसमें आपको पता चल जाए कि सारे फूड न्यूट्रिएंट्स सही प्रोपोर्शन में है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए, हाउ मच शुड बी द प्रोपोर्शन, हमें कैसे पता चलेगा? उस प्रोपोर्शन को फाइंड आउट करने के लिए
फूड पिरामिड बनाया गया है. So basically it's a triangular diagrammatic representation of the optimal number of serving to be eaten every day. It means आपको पिरामिड देख के, फूड पिरामिड देख के एक आइडिया हो जाएगा कि लगभग कितना क्या फूड ग्रुप से आपको खाना है, ताकि आप एक बैलेंस डाइट ले सकें. So coming to the basic food group. बेसिक फूड ग्रुप एक पिरामिड में, पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर आई विल शो यू द पिरामिड. ये होते हैं ब्रेड, सीरियल, राइस और पास्ता. हमारे इंडियन सिनेरियो में जनरली सीरियल्स, राइस एंड मिलेट्स. मिलेट्स मतलब आपके रागी, बाजरा, ज्वार, ये सारी चीजें आ जाती. ब्रेड अगर आप लेते हैं तो वो भी सीरियल इस ग्रुप में आ जाता है. सेकेंड इज वेजिटेबल्स, देन इज फ्रूट्स, देन आर मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, then is the meat, poultry, fish, egg, nuts and legumes, and the last one is fats, oils and sweets. These are also energy giving but should be taken in very less amount as compared to the other ones. So ये आप देख सकते हैं, this is a food pyramid. So that day also I showed you, this is very important aspect of making an important diet plan. You should know कि खाने में क्या कम और क्या ज्यादा होना चाहिए. You can see that downside of the pyramid, the maximum base is carbohydrate containing food. Okay, and this is a kind of USDS pyramid which is used in our country also. So it is all bread, rice, millet group, and 6 to 11 servings. मतलब 6 से 11 serving इसकी 600 nearly 6 grams आप ले सकते हैं एन एवरेज डाइट. ये होना चाहिए, 6 सर्विंग होना चाहिए ऑफ सीरियल्स. नेक्स्ट आप देखते हैं खाने में नेक्स्ट क्या ज्यादा होना चाहिए. नेक्स्ट वेजिटेबल्स ज्यादा होने चाहिए एंड फ्रूट्स इक्वल होने चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप खुद देखें अपने डाइट प्लान में, आई डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ यू, बट लोग ज्यादा से ज्यादा एक दिन में एक फ्रूट खाते हैं, 2 फ्रूट खाते हैं. बट फ्रूट का जो सर्विंग शुरू होता है दैट इज फ्रॉम 200 to 400 grams, विच हार्डली पीपल मीट. कुछ लोग तो फ्रूट ही हफ्ते में 1-2 बार खाते हैं. नाउ सिमिलर इज वेजिटेबल ग्रुप. वेजिटेबल ग्रुप मीन देयर शुड बी 3 to 5 सर्विंग ऑफ वेजिटेबल. 300 से 500 ग्राम सब्जी एक बैलेंस डाइट में एक एवरेज इंसान को लेना चाहिए. बट हार्डली पीपल टेक इट, क्योंकि सब्जी लोगों का, जैसे मैं देखती हूँ कंसल्टेशन में, काटने का टाइम नहीं होता है. दे डोंट हैव टाइम टू मेक इट, प्रिपेयर इट, सो द डाइट इज नॉट बैलेंस्ड. Followed by this, slightly smaller portion you can see on the upper part of the pyramid is the milk, the cheese and the curd group. This should be 200 to 300 servings. और unfortunately ये लोग मैंने देखा है नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन में ये ज्यादा हो जा रहा है. स्पेसिफिकली कुछ बेल्ट है जो दूध ही सोचते हैं. दूध में it's told that milk is a complete diet in itself. But it's never like. अगर आप बच्चे को खाने की जगह सिर्फ दूध दे रहे हैं तो it doesn't become a balanced diet at all. So there should be 2 to 3 servings maximum, 300-400 ml. In pregnancy and lactation the requirement increases, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. And the other part of the pyramid is meat, poultry, eggs, nuts, again all protein giving foods. So ये आपको 2 to 3 serving एक बैलेंस डाइट में इंक्लूड करना चाहिए. And the above part of the pyramid you can see the the upper part, it means fats, oils and sweet. मिठाइयाँ, तेल और बटर, सारी चीजें इसमें आ जाती हैं. और आप देख रहे हैं कि ये कितना कम अमाउंट में डाइट में होना चाहिए. तो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ प्लानिंग. अगर आपको एक नॉर्मल एवरेज एडल्ट का डाइट प्लान बनाना है तो आपको आई थिंक अब आइडिया हो गया होगा कि आप 600 से बेस्ड ऑन उनकी एक्टिविटी 600 ग्राम से लेके 800 ग्राम या 1000 तक 1 kg तक आप उसको सीरियल्स देंगे सारा दिन में. 500 ग्राम तक वेजिटेबल्स देंगे, 400, 300, 350 ग्राम तक फ्रूट्स देंगे. सो उसके बाद 300 ml मिनिमम, 200 ml मिनिमम आप दूध देंगे उसको एक दिन में. कम से कम 100 ग्राम दाल हो जाएगा एक दिन. ओके, सो दिस इज हाउ द बेसिक, दिस इज बेसिक.
डिजीज में ये मॉडिफाई होता है, दैट इज नोन एज मॉडिफाइड न्यूट्रिशन थेरेपी। थोड़ा सा मॉडिफाई होता है, बेस यही रहता है। So this is a food pyramid which is the most important basis of planning a diet. Now coming to grains, लोगों को पता होगा, काफियों को नहीं पता होगा कि grains में हम there are two type of grain, whole grain and refined grains. And nowadays with the kind of lifestyle disease, आपका जो plan है उसमें ज्यादातर you should have more of whole grains. Why whole grains? Because these are generally having brand, germ and endosperm. आपने देखा होगा आजकल लोगों ने अचानक से ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस, ओट्स, बार्ले, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी सब फिर से खाने लगे हैं। Why? Because these are whole grains. इसमें फाइबर बहुत ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसका अपर लेयर हम हटाते नहीं है। इसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और ये डायबिटीज से, मोटापे से, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट डिजीज से सबसे प्रोटेक्ट करता है। So these are known as whole grains. Grains में भी variety है. So these are whole grains. Then comes the refined grain. Refined grain means उसकी आपने processing कर दी and the fiber part is removed. जो कि important भी होता है। अब बेकरी में अगर आप बिना मैदे का कुछ बनाना चाहे, it becomes very difficult. So there the maida part is basically maida is refined grain जो हम use करते हैं। राइस की बहुत सारी पॉलिशिंग हो जाए, then it becomes a refined grain. Otherwise it is a brown rice. So refined grains are like white bread, white rice, pasta, noodle, ये सब refined grains हो गए, and that's why people are taking it more because ये बनाना बहुत जल्दी हो जाता है, cooking takes very less time और फैट ज्यादा चढ़ता है, लोगों का वेट ज्यादा बढ़ता है if they take refined grain. So why I'm including this कि next time आप कभी भी डाइट प्लान करें तो आपने ये तो देख लिया कि हाँ मैं 600 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दूंगी या 800 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दूंगा, बट क्या ज्यादा दूंगा दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उनका वेट ज्यादा है तो आप होल ग्रेन ज्यादा देंगे, ओके, एंड यू विल ट्राई टू इंक्लूड मोर ऑफ होल ग्रेन इन द डाइट rather than the refined. So I hope till here it's all clear to all. I am proceeding now to the next slide. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So why again? I don't know whether you have heard or not. अगर आपने ऑर्गेनिक इंडिया का यहाँ एक I don't know दिल्ली में एक बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्टार्ट किया था इनिशिएटिव। इस साल तो कुछ हो नहीं पाया, बट उसमें मैंने देखा कि कितना लोग हेल्थ अवेयर हैं। पीपल आर बाइंग ब्लैक राइस लाइक एनीथिंग। सो ब्लैक राइस, ब्राउन राइस, दीज आर वेरी वेरी इन थिंग। जो लोग बहुत ज्यादा डाइट कॉन्शियस है वो ये सब खाते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि इसमें फाइबर है। दीज आर वेरी विटामिन्स एंड मिनरल्स, क्योंकि उसका अपर लेयर हमने पॉलिश नहीं किया है। तो फोलेट, थायमिन, नाइसिन, आयरन, these are all present in very good amount in these whole grains. When it is refined, there is removal of bran and germ, and that's why there is loss of nutrient. तो कुछ न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता है, that's why they are saying कि मैदा कम खाइए, okay, और पॉलिश राइस कम खाइए। Now coming to the second most important part, like I told you, vegetables. So vegetables का भी there is a classification of vegetables like roots and tubers, जो आपके जमीन के नीचे के होते हैं, potatoes, turnips, carrots, bulbs, onion को बोला जाता है, stem is celery. celery का जूस बहुत importantly आजकल दिया जा रहा है जिनको immunity की प्रॉब्लम हो, गट की प्रॉब्लम हो। लीव यानी पत्तेदार सब्जियां, flowers like cauliflower, broccoli, and peas and beans. तो इसमें भी वेजिटेबल्स में भी there is a variety. तो अब आपको मैंने बोला था कि आपको ऑन एन एवरेज 200 से 250 से 500 ग्राम 500 ग्राम ऑफ वेजिटेबल शुड बी देयर इन योर डाइट। अब डिपेंड्स कि आप क्या देते हैं। कोई वेट लॉस के लिए आ रहा है और आप उसको रूट्स एंड ट्यूबर्स दे तो उसका वेट लॉस नहीं होगा। तो तब आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा वेजिटेबल देना है। तो व्हाट यू विल ट्राई टू गिव मोर इज यू विल ट्राई टू गिव मोर ऑफ लीव्स, मोर ऑफ फ्लावर्स एंड मोर ऑफ स्टेम। ठीक है, डायबिटीज वालों को भी आप ऐसे ही देंगे, हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा देने की कोशिश करेंगे।
ब्रोकली देंगे, कॉलीफ्लावर देंगे, लेकिन रूट्स कम कर देंगे क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा स्टोर्ड स्टार्च होता है, विच इज नॉट गुड फॉर वेट लॉस, फॉर डायबिटीज. बट जो लोग अंडर वेट है उनके लिए दिस इज वेरी हेल्पफुल. जो लोग मैल नरिश है उनके लिए शकरकंदी है, आलू, इट्स वेरी. सो डिपेंड्स आप क्या चीजें इंक्लूड करते हो एक डाइट प्लान और क्या आपका गोल है. This comes as the second most important part, but that is followed by cereals. It should be vegetable. And then next is fruits. As I told you, fruits are majorly important for vitamins, for immunity. You get folate, you get carotenes, you get potassium, you get lot of electrolytes from fruits. Okay, थोड़ा and ये energy भी देते हैं साथ में. इसमें फ्रूट्स खाने से आपको एनर्जी भी मिलेगी, विटामिन भी मिल रहेंगे. और शुगर इज फार बेटर देन द कार्बोहाइड्रेट वाला शुगर, बिकॉज इसमें फ्रक्टोज है और सीरियल में आपको सुक्रोज और स्टार्च मिल रहा है. फ्रक्टोज इज ऑलवेज बेटर एज कंपेयर टू द अदर टू, क्योंकि जब आप फ्रक्टोज के सोर्स ले रहे हैं आपको साथ में बहुत सारा विटामिन भी मिल रहा है. सो फ्रूट्स आर डेफिनेटली very good to be included in the diet. As I told you, it starts from 200 to 350 grams of fruits every day in a balanced diet. Now the next important group is milk and milk products. So milk products में बहुत कुछ आ जाता है, पनीर आता है, दूध आता है, चीज आता है. Why I'm telling you, क्योंकि जब आप डाइट प्लान करते हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर आज ही जैसे मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उन्होंने बोला मुझे दूध नहीं हजम होता और मैं वेजिटेरियन हूँ और उनका अंडर वेट हो रहे हैं वो. अब आप बताइए हाउ आर यू गोइंग टू गिव फूड पिरामिड देख लिया आपने, बट हाउ यू गोइंग टू प्लान. मिल्क वो लेते नहीं है, ही इज वेजिटेरियन बट ही नीड्स प्रोटीन और उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है. सो द अदर फॉर्म्स यू कैन गिव देम योगर्ट, कर्ड, कर्ड. तो आपको दही से, छाछ से, पनीर से, सोए के पनीर से, सोए के दूध से you can give them proteins. So these milk products are excellent source of calcium and B vitamins. So जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं लेते हैं और वो दूध भी नहीं लेते हैं, in them vitamin B12 deficiency is very common. So at least if you are a non-vegetarian, that's fine. आप दूध के बिना चल सकते हैं. But if you are a vegetarian, you must take milk or milk products. So that is why it's a very important part of the food pyramid. Next comes milk. Milk and milk product में ये बताना चाहती हूँ कि जो milk का sugar है, आप देखेंगे जब आप दूध पीते हैं तो वो मीठा होता है थोड़ा सा. And principally the sugar is known as lactose. काफी लोगों को लैक्टोज से इंटॉलरेंस होता है, उनकी बॉडी नहीं लैक्टोज को डाइजेस्ट कर पाती क्योंकि एक एंजाइम चाहिए होता है जो आगे आप पढ़ेंगे, लैक्टेज. तो लैक्टोज इंटॉलरेंस काफी लोगों के लिए इट्स वेरी कॉमन. दैट्स व्हाई आई वांटेड द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज बेसिकली लैक्टोज. Now coming to the other group for proteins, meat, fish, eggs. अब वेजिटेरियन जो है वो ना ही मीट लेते हैं, ना फिश लेते हैं, ना एग्स लेते हैं. तो उनको कैसे हम प्रोटीन देंगे, कितना दूध दे देंगे अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस हो. तो आई थिंक ऑल ऑफ यू नो अबाउट नॉन वेजिटेरियन, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग मोर ऑन दैट. अभी आप देखेंगे कि देयर आर सो मेनी गुड सीड्स you make up the protein in the diet plan. सनफ्लावर के सीड्स है, पंपकिन के सीड्स है, फ्लैक सीड है, ये दे सकते हैं आप उनको. लेग्यूम्स मतलब आप ये सोयाबीन दे सकते हैं उनको, आप स्प्राउट्स दे सकते हैं उनको, आप चना का सैलड दे सकते हैं उनको फॉर प्रोटीन. These are the other sources from which you can make up their B vitamins and specifically B12 if you want to give them. तो जब आप वेजिटेरियन का डाइट प्लान बना रहे, you have to take up this in mind by making a balanced diet. So nuts and seeds I already discussed. These are sunflower, sesame, pumpkin seeds, flax seeds, अलसी का बीज जिसको बोलते हैं. सनफ्लावर का बीज आपको मिल जाएगा आराम से आजकल बाजार में, but things have become very costly. बादाम तो all of you know, hazelnut आपको पता है, अखरोट पता है. These are all nuts and seeds. क्यों देते हैं हम ये?
बिकॉज ये प्रोटीन भी देगा और विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स भी देता है. So very good for the skin also. Then coming to legumes. Legumes are like dried peas, जो मटर होता है, beans होते हैं, lentils होते हैं. These are all come under the category of legumes. Okay, so legumes are very good source if you want to meet the protein requirement in a diet, and these are also very good in fiber. अब अगर आप किसी को फाइबर भी देना है तो सोर्स फाइबर भी मिल जाएगा और प्रोटीन भी मिल जाएगा. तो दैट्स which we were discussing. And the last one is fats, oils and seeds. अब ये एक ऐसा पार्ट है जो डाइट में बहुत कम होना चाहिए, बट हम ये नहीं कह सकते हैं कि there is no importance in of fats and oils. If somebody is not taking fats, if not taking oils, then obviously there is a problem with almost all the system of the body. Can anyone just tell me that what can be a problem if we don't give fats adequately in a diet? Ma'am, especially joints वगैरह में बहुत problem आता है. If there are lubrication of joints, even in the intestine. Very good. So yes, it is important for lubrication of joint. You know why? One is lubrication function. Another thing जो आजकल लोग ना अचानक से बिल्कुल फैट कम कर दे रहे हैं और इसीलिए फैट सोल्यूबल विटामिन्स की बहुत ज्यादा आजकल कमी दिख रही है. फैट सोल्यूबल विटामिन्स है ADEK. इसीलिए लोगों को डिप्रेशन ज्यादा हो रहा है, इसीलिए लोगों को डायबिटीज ज्यादा हो रहा है. दे डोंट इवन नो. सो एक लिमिट तक यू हैव टू हैव फैट्स इन योर डाइट. At least 20 gram of fat anybody should have in a diet. Okay. Why? Because if you don't take, you even suffer from a deficiency of fat soluble vitamin. क्योंकि fat soluble vitamin को body में आने के लिए fat चाहिए, and we are not giving. Then cholesterol को हमने बहुत bad marker रखा है, but अगर हम थोड़ा भी ना हो body में, अगर थोड़ा भी नहीं ले रहे हैं आप diet में, तो आपका ब्रेन डेवलपमेंट, माइलिन डेवलपमेंट सब इफेक्टेड होगा. तो आपके ब्रेन फंक्शनिंग, बच्चों की ब्रेन फंक्शनिंग कैपेसिटी खराब हो जाएगी. दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कम अमाउंट में चाहिए. वी नीड इट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बट वी नीड इट. एंड व्हाई द बैड नेम हैज कम टू फैट्स, ऑयल एंड स्वीट्स? बिकॉज दीज गिव एम्प्टी कैलोरीज. बेसिकली द स्वीट गिव एम्प्टी कैलोरी. इट मीन्स अगर आप मिठाई खा रहे हैं, okay, you take any mithai, you take sweets, chocolates, what do you get? Basically you get empty calories because you don't get mineral or vitamin from it. तो जैसे चीनी है, रिफाइंड आप ले रहे हैं, आप चाय में 3 चम्मच भी डाल लीजिए, that's going to give you empty calories. empty calorie मतलब आप 3 चम्मच डालेंगे तो for each चम्मच you will be getting calorie 60-70 कैलोरी आपकी आ जाएगी, बट आपको कुछ मिनरल, कोई विटामिन, कोई बेनिफिट नहीं मिले. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एम्प्टी कैलोरी फूड. इसीलिए हम खाने में कम अमाउंट में लेते हैं. वी डोंट गेट मच कैलोरीज फ्रॉम, मच विटामिन्स, मिनरल्स फ्रॉम इट. दैट्स व्हाई मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बंद कर दें इसको डाइट में देना. So I think till now the basic I have told you. We now know what is a balanced diet. After I send the slide, I think it will be clear to you कि कितना ग्राम क्या होना चाहिए लगभग एक नॉर्मल इंसान के डाइट में. I hope that's all clear. Yes, ma'am. Okay. So if anybody is having a question, I can wait for 1 minute. You can probably have a question in the sense doubt in this, so that I proceed with the next topic of malnutrition. Madam, sorry, can I ask? Yeah, continue. मुझे ये पूछना था कि वो जो पिरामिड के हिसाब से जितना भी सर्विंग सब है, उन सबको कैलकुलेट करने से कितना कैलोरी होता है ऑलमोस्ट अराउंड? ये मैं अभी आपको आरडीए में दिखा देती हूँ. ये मैंने आरडीए रखा है अभी. ये मैं अभी यही दिखाने वाली थी. तो मैं आपको ये दिखाऊंगी. आप उसको कैलकुलेट करके आरडीए में नहीं पहुंचते हैं.
आप आरडीओ को देख के उसको कैलकुलेट करते हैं. तो आई जस्ट शो यू. आई एम जस्ट प्रोसीडिंग विद दैट. आई थिंक वही कंफ्यूजन है, नो? रेस्ट ऑल इज ओके, राइट? मैम वो एक क्वेश्चन था, प्रोटीन जैसे आपने जो चार्ट दिखाया था उसमें फ्रूट्स एंड कार्बोहाइड्रेट का था. प्रोटीन कौन से इसमें आएगा मैम पिरामिड के? मतलब लास्ट में जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है उसमें आएगा? नहीं, मैं अभी आपको बैक ले जाके दिखाती हूँ कहाँ पे आएगा. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और लेग्यूम्स वाले में आएगा. ये देखिए, ये जो मीट, पोल्ट्री और फिश, ये जो थर्ड पार्ट है ना. ओके. तो ये देखिए, फैट्स नीचे का पोर्शन है. मिल्क, योगर्ट, चीज ग्रुप एंड मीट, पोल्ट्री ग्रुप. इस ग्रुप से आपको प्रोटीन मिलेगा. तो वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन यू विल मीट फ्रॉम मिल्क, कर्ड, चीज. And in non-vegetarian diet, you can meet your protein from all these plus eggs and poultry and meat and dry beans. आप वेजिटेरियन को दाल से, नट से, सीड से, दूध से प्रोटीन देंगे और नॉन वेजिटेरियन को मीट, पोल्ट्री, दूध एंड प्लस एग्स, ये सारी चीजों से देते हैं. So this is the portion just under fats, oils and sweets. That is the portion from where you give protein to them. It should be nearly minimum, like for milk, minimum for a person it should be 200 to 300 ml. Okay, no problem. And other things like dal should be again 200 to 300. It means either nuts or seeds or dals in a day should be nearly 200 grams and maximum to 300 grams. Okay. पर मैडम दाल अगर का serving is 30 grams, so it will come to maximum 100-150 grams. Yes. पर अगर किसी को डाइट में वेट लॉस करना है तो डोंट यू थिंक द कार्बो पोर्शन इज मच मोर according to the pyramid? That's what I told you. This is the average food pyramid for a normal human being. And as I told you, according to the disease condition, since obesity is also one disease condition medically, we have to alter this plan. उसको मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी बोलते हैं. वो बहुत इन डेप्थ है. वो थोड़ा बहुत मैं आपको डेफिनेटली आपके कोर्स में है तो आई विल टीच यू. बट ये बेसिक है. उसमें भी उनके डाइट में भी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहेगा अनलेस एंड अनटिल इट इज अ कीटो डाइट, लेकिन इतना ज्यादा नहीं रहे. तो मे बी हम उनको 4 या 5 रोटियां या 6 रोटी में कंप्लीट करेंगे उनका डाइट प्लान. तो 500 ग्राम तो रहेगा ही रहेगा. इससे कम कार्बोहाइड्रेट नॉर्मल इंसान के लिए है, जो आपको हमेशा न्यूट्रिशन में पहले पढ़ाया जाता है. हेलो मैम. ऑलराइट. हेलो. यस. हाँ, यस मैम. एक्चुअली मुझे पूछना था कि जो वेजिटेरियन लोग होते हैं तो उनको विटामिन B12 के लिए फिर क्या सोर्स है? वेजिटेरियन के लिए विटामिन B12 के लिए हम उनको बोलेंगे कि एटलीस्ट अपना मिल्क का एक्सचेंज आप अच्छे से लो और दाल और लेग्यूम, सीड्स उनके डाइट में ज्यादा देंगे. ओके. मतलब कि जैसे सोयाबीन लेने को बोलेंगे. दाल, लोग तो दाल भी नहीं लेते हैं. मैंने देखा हफ्ते में 3 बार या 4 बार सिर्फ दाल लेते हैं वेजिटेरियन लोग. और लेना चाहिए एटलीस्ट हर एक मील में, एटलीस्ट 2 मील में एक दिन में. तो हम उनको वो चीजें कंप्लीटली लेने को बोलेंगे कि दाल लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए, नट्स एंड सीड्स लीजिए, दूध लीजिए. दूध नहीं हजम होता है तो दही लीजिए. अगर ये सारी चीजें भी वो नहीं ले रहे हैं एडिक्वेटली, तब B12 की कमी हो जाएगी. तो हम उनको सप्लीमेंट देंगे. ओके, थैंक यू. ओके, बट इट कैन बी मेड डाइट. ऐसा नहीं है कि आपको सप्लीमेंट ही देना पड़ता है. अगर वेजिटेरियन का डाइट अच्छा है तो दे विल नॉट हैव B12. प्रॉब्लम ये हो गई है कि वेजिटेरियन भी अच्छे से प्रोटीन नहीं लेते. कितने लोग स्प्राउट्स डेली लेते हैं? आई एम सरप्राइज. लोग दाल भी नहीं लेते हैं रोज, तो सब्जी रोटी हो जाती है. फिर जिस दिन चावल खाते कहते हैं उस दिन दाल बनाते हैं. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हाट अराइज. तो आप यही देख लीजिए कि वो ये चीजें अच्छे से ले रहे हैं. Yes, so I was talking about the RDA. Now you will tell me कि ये मैम आपने बता दिया, अब कैसे कैलकुलेट करना है. तो this is the RDA which our ICMR has given, Indian Council of Medical Research. मतलब कि एक प्रेग्नेंट लेडी को कितना कैलोरी चाहिए,
एक ओल्ड लेडी को, एल्डरली को कितना कैलोरी चाहिए, वो ऑलरेडी दिया रखा है. दैट्स बीन गिवन बाय द दैट्स नोन एज द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, RDA. इट मींस इट इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट. थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन में रख के ये हमारे ICMR ने ये RDA सब लोग के लिए दे दिया है. But like it is written, you can see in the portion of the slide, it does not apply to sick people. आप अगर बीमार हैं, you have diabetes, you have cardiovascular disease, then RDA will not apply to you. Then it becomes MDA, modified dietary allowance. और वो मैं आज की क्लास में नहीं ले रही. आप पहले RDA को समझिए जो बेसिक है. Okay? So RDA means this is on an average requirement for most of the people. अब ये किस पे बेस्ड है ये आप देख लीजिए. Okay, so this is the one categorization of worker. RDA के बेस पे हम लोगों ने workers का categorization किया है, मतलब RDA को बनाने के लिए. So sedentary worker means like me, but I don't think you will come. If you are vigorously into yoga training, you might not come under this, but most of us are sedentary workers. It means we are office workers, driver, shopkeeper, teacher, lawyer, doctor. जो मैक्सिमम अपना काम बैठ के करते हैं, दे आर सेडेंटरी और लाइट वर्कर्स. मॉडरेट वर्कर्स आर, यू कैन सी पोस्टमैन, प्लम्बर, कंडक्टर, टेलर, कारपेंटर. दे इनका थोड़ा मॉडरेट एक्टिविटी होता है. एंड हार्ड वर्कर्स आर, यू नो, दोज हु आर मेकिंग बिल्डिंग, कोल माइनर, स्टील वर्कर, आर्मी पीपल. ओके, दोज हु आर वर्किंग इन आर्मी, जो बहुत ज्यादा विग्रस ट्रेनिंग में है, लेबरर, ये सब हार्ड वर्क पे आते हैं, हार्ड वर्कर की कैटेगरी. और इसी के अकॉर्डिंगली ICMR ने RDA टेबल बनाया है. ये अभी के लिए आपका ये सबसे इजी रेडी रेकनर है कि अगर आपको सपोज किसी एडल्ट सेडेंटरी वर्कर का कैलोरी देखना है, कितना देना है, तो दिस इज द RDA. सो आइडियली उसका बॉडी वेट 60 kg होना चाहिए. ओके, अगर इतना है तो नियरली RDA ये होता है 2425. प्रोटीन 60 ग्राम एक दिन में होना चाहिए, फैट 20 ग्राम लाइक आई टोल्ड यू, कैल्शियम मिनिमम 400 मिलीग्राम होना चाहिए, आयरन 28 मिलीग्राम होना चाहिए. एंड सिमिलरली फॉर प्रेग्नेंट लेडीज यू कैन सी कितनी कैटेगरीज हैं, सेडेंटरी है, मॉडरेट है, प्रेगनेंसी में है, लैक्टेशन में है. सो एक नॉर्मल लेडी 50 kg की, उसका यू नो जो RDA है नियरली 1800 कैलोरी आप देंगे. 50 ग्राम प्रोटीन उसके डाइट में होना चाहिए और आयरन 30 मिलीग्राम उसके डाइट में होना चाहिए. फैट इज सिमिलर फॉर बोथ एंड कैल्शियम इज आल्सो सिमिलर, ओनली इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन कैल्शियम का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा एक प्रेग्नेंट लेडी का. सो दिस इज द RDA टेबल व्हिच वी फॉलो, you know, for making diet plan for normal people on an average. And हमारे न्यूट्रिशन के कोर्स में तो our students actually have to remember this RDA table, क्योंकि इसी को देख के हम लोग डाइट प्लानिंग करते हैं. तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया कि what is RDA table? It means it's a table from which you can find out किसी कोई आपके पास आया कि उसको कितना कैलोरी, कितना प्रोटीन, कितना, ये हेडेक आपको अभी नहीं करना है. ये आप इजीली इस टेबल को देख के कैलकुलेट कर सकते हैं, जब तक कि उसको कोई डिजीज ना हो. अगर वो ओबीस है तो ये चेंज हो जाएगा. वो कैसे होगा वो हम बाद में सीखेंगे, पहले इसको सीखिए क्योंकि ये बेसिक है. ओके, so you can see there is RDA for macronutrient. This is the RDA table for vitamins. तो रेटिनॉल का, एवरीथिंग का आप RDA मिलेगा आपको. विटामिन C कितना होना चाहिए, ओके, 40 माइक्रोग्राम विटामिन C एक दिन में को लेना चाहिए. फोलिक एसिड कितना होना चाहिए, ऑल यू विल गेट इन दिस RDA table. This is also RDA table. This is for children 0 to 6 months, 6 to 12 months. तो इसमें कुछ नहीं करना, दिस इज अ टेबल, आपको जस्ट देखना है और फिर कैलकुलेट करना, डाइट प्लान करना. ओके,
Screen share. So till now it's okay. I think it should be clear to all of you. And now just a small topic I will take up, that is malnutrition. Yes, so abhi tak we studied about food groups, studied about RDA. Now what is malnutrition? Malnutrition is a state where either there is more excess of nutrient or there is lack of nutrient. It means या तो आपको अंडर न्यूट्रिशन है किसी को या उसको ओवर न्यूट्रिशन है, ओबेसिटी है. इट मीन्स या तो कोई आरडीए से बहुत ज्यादा ले रहा है और एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो उसको ओबेसिटी होगी, और वो आरडीए से बहुत कम ले रहा है तो उसको प्रोटीन एनर्जी या एनर्जी malnutrition होगा. That is known as undernutrition. And most commonly malnutrition in children is in this form, that is known as stunting. मैंने उस दिन भी आपको बताया था what is stunting. Okay, stunting means you don't measure the height for your age. It means बच्चों में उनके एज के अकॉर्डिंगली उनका हाइट को नहीं गेन कर पाते हैं. That is known as stunting. और ऐसे बच्चे एडल्ट्स में भी आप देखेंगे जनरली कम हाइट के होते हैं एज कम्पेयर टू देयर काउंटर पार्ट, बट वो जेनेटिक कम हाइट नहीं होता है. दैट इज कॉल्ड स्टंटिंग. यू कैन इजीली मेक आउट. उनका कभी भी हेल्थ ठीक नहीं होता है, अप्रोप्रिएट नहीं होता है. सो दैट इज नोन एज स्टंटिंग विच इज ऑल्सो ड्यू टू अंडर न्यूट्रिशन. देन देयर इज वेस्टिंग. दो चीजें होती है. एक स्टंटिंग मतलब लेसर हाइट फॉर एज, अदर वन इज वेस्टिंग. वेस्टिंग मीन्स मसल नहीं होते बॉडी में. So wasting, it's a process which causes muscle and fat tissue to waste away. आप फोटो में देख सकते हैं क्या होता है वेस्टिंग. रिब्स हैं और कोई फैट और कोई मसल नहीं है बच्चे का. So this is known as wasting. It means they are too thin for their height. हाइट के अकॉर्डिंगली उनका वेट नहीं होता है. स्टंटिंग में एज के अकॉर्डिंगली उनका हाइट नहीं होता है, और ओबेसिटी में वेट ज्यादा होता है. So there is nothing with height. According to their height, their weight is more. So that is known as obesity. जब according to age is more, that is known as childhood obesity. तो आपको बस इतना समझना है कि malnutrition क्या होता है. उसके दो फॉर्म्स होते हैं, under nutrition and over nutrition, which is obesity. और just for your understanding, मैं आपको just बताना चाहूंगी why are we studying malnutrition, because हमारी country we are leading with Africa in protein energy malnutrition. Okay, our children are highly malnourished. हमारे जो छोटे बच्चे हैं इसमें ये मरासमस और क्वाशियोरकर बहुत कॉमनली मिलता है हमारे छोटे बच्चों में. मतलब जो थोड़े लो लेवल से इनकम ग्रुप से होते हैं. सो दिस इज नोन एज क्वाशियोरकर. ये देखेंगे आप जिसमें पॉट बेली है. तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो देखने में बहुत अच्छे प्लम्प लगते हैं और पता नहीं चलता कि दे हैव malnutrition. And this is called marasmus, जो आप देख रहे हैं. Okay, so kwashiorkor में there is only a deficiency of protein, whereas marasmus is a condition which occurs because of deficiency of energy as well as protein. तो क्वाशियोरकर किनको होता है, जिनमें खाने में सिर्फ you will see बल्क में सिर्फ चावल या सीरियल बेस्ड डाइट दिया जाता है बच्चों को. बहुत सारा चावल बॉईल करके दे दिया. उनके खाने में वेजिटेबल्स नहीं होते, उनके खाने में दाल नहीं होती. बट मरासमस क्या कंडीशन है, खाना ही ठीक ठाक नहीं होता. सो यू कैन सी द स्लाइड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मरासमस एंड क्वाशियोरकर. आई टुक दिस टॉपिक बिकॉज व्हेन यू आर स्टडीइंग न्यूट्रिशन यू मस्ट नो हमारी कंट्री का लीडिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है. सो दिस इज व्हाट वी आर फेसिंग. अपार्ट फ्रॉम एनीमिया एंड आयोडीन डेफिशिएंसी, हमारी कंट्री में मेल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है. और इसीलिए हम लोग मिड डे मील प्रोग्राम वगैरह रन कर रहे हैं. सो यू कैन सी द डिफरेंस. आपने देखा मरासमस में बहुत ज्यादा मसल वेस्टिंग होती है, जबकि क्वाशियोरकर में बच्चा फूला लगता है क्योंकि उसमें इडमा होता है, स्वेलिंग होती है बॉडी में. ठीक है. और
weight for height is very low in marasmus. Okay, it means weight जो बच्चे का है marasmus में बिल्कुल कम है, क्वाशियोकर में ज्यादा है क्योंकि उसके बॉडी में पानी बहुत भरा है, एडिमा बहुत है. सो ये ज्यादा मैं नहीं लूंगी क्योंकि ये आपके पार्ट का कोर्स का पार्ट नहीं है, जस्ट आपको बताने के लिए था कि मेल न्यूट्रिशन इंडिया में ज्यादा है, यू मस्ट नो दिस. बट आपको ऐसे भी आगे जाके लोग मिलेंगे जिनका आप डाइट प्लान करेंगे, जो वेट नहीं गेन कर पाते हैं, जो वीक हैं, उनमें भी किसी तरह का मेल न्यूट्रिशन बचपन में रहा होता है. सो आई जस्ट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड मेल न्यूट्रिशन का इम्यूनिटी के साथ क्या इफेक्ट है, मतलब क्या रिलेशन. सो यू कैन सी दैट मेल न्यूट्रिशन क्या करता है. जब आप अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, जब आप आपके हेलो हेलो Yes, ma'am. ओके, सो जब अच्छे से आपको डाइट नहीं मिलता है तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. इसीलिए मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी क्योंकि अभी बहुत ज्यादा कोरोना है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप कभी भी खाली पेट मत रहिए. इफ यू आर वर्किंग, इफ यू आर अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ये नहीं कि आप 10 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. whenever you are malnourished anywhere, maybe for a shorter period of time, आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज रहेगी. इम्यूनिटी अगर कम हो गई, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होंगे. इन्फेक्शन होगा तो ऑब्वियसली जब कोई फीवर होता है, कोई बीमारी होती है, तो सबसे पहले खाने पे इफेक्ट आता है. देन यू कैन नॉट टेक फूड प्रॉपरली. ठीक है, तो क्या होता है, उससे एनर्जी कम होती है. एनर्जी कम होती है तो बॉडी गोज इनटू हाइपर मेटाबॉलिज्म. ओके, तो प्रोटीन का कमी हो जाता है, नाइट्रोजन बैलेंस खराब हो जाता है, और फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं होते. तो इट इज नोन एज अ विशियस साइकिल. इसका मतलब अगर एक बार इस साइकिल में कोई पड़ गया तो इससे निकलना बहुत मुश्किल है. इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, काफी पेशेंट्स आपके पास आएंगे, आप अगर उनसे पूछेंगे, यंग लड़के जैसे 25-26 साल के, मसल योगा से वेट गेन करने के लिए आएंगे आपके पास. एंड इफ यू आस्क देम, तो वो हमेशा बोलते हैं, आप उनका बैकग्राउंड अगर रिकॉल करिए कि हाँ, बचपन में भी ठीक से नहीं खाना खाता था, पेट खराब होता था, लूज मोशन की प्रॉब्लम थी. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि छोटे से बचपन से क्या रहा हो. तो आपको फिर वैसे योगा पोस्टर्स इंक्लूड करने चाहिए अपने प्लान में, जो उनकी गट इम्यूनिटी को, इंटेस्टाइन को स्ट्रेंथ दे. ओके, और फिर अकॉर्डिंगली आपको डाइट प्लान करना चाहिए. So this is about the vicious cycle of malnutrition and infection की ये कैसे लिंक है. इसीलिए आजकल आप देखेंगे इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स पे बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कोरोना के टाइम पे. क्यों? बेसिकली क्योंकि आप किसी भी तरह का मेल न्यूट्रिशन ना हो. मेल न्यूट्रिशन सिर्फ रोटी कम खाने से नहीं होता है. अगर आप सब्जी भी कम खा रहे हैं, आप सैलड नहीं खा पा रहे हैं, तो भी मेल न्यूट्रिशन होगा, विटामिन का होगा. इसीलिए किसी भी फॉर्म ऑफ मेल न्यूट्रिशन से इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है. इसीलिए कहा जा रहा है, आप कोरोना डाइट देखें तो बहुत सारा फ्रूट दे रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे जूसेस दे रहे हैं, वेजिटेबल दे रहे हैं, सुबह सुबह कह रहे हैं कि आप करेले का जूस, एलोवेरा का जूस लीजिए. दैट्स ऑल बिकॉज किसी भी तरह की बॉडी में मेल न्यूट्रिशन ना रहे. बिकॉज इफ देयर इज मेल न्यूट्रिशन, देयर इज कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी एंड इन्फेक्शन. ओके, यू बिकम मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन. आप में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते. So I think I like to end up here with my plate. That's all. I think today you can take up. My plate is a healthy concept जो निकाला गया है. आजकल लोगों को इतना लाइफस्टाइल प्रॉब्लम होती है, तो उनको समझ नहीं आता कि बैलेंस डाइट बोल दिया, I told you about pyramid. बट अगर आपको एक प्लेट में किसी को समझाना हो कि क्या कितना लेना है, so this is the most easy ready reckoner. तो आप देख सकते हैं आजकल की लाइफस्टाइल डिजीज की लेते हुए बोला जा रहा है कि जितना आप होल ग्रेन्स मतलब ग्रेन्स ले रहे हैं, दैट शुड बी मोस्टली होल ग्रेन. एंड आई हैव ऑलरेडी टॉट यू व्हाट आर होल ग्रेन्स. ओके, होल ग्रेन्स वुड बी लाइक, इंस्टेड ऑफ राइस try to take brown rice, instead of roti take multigrain roti. So these are like whole grains. Okay, take ragi, take bajra, you must take all these. इसके साथ ही आपके प्लेट में इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन होना चाहिए, यानी दाल, नॉन वेज फूड प्रोडक्ट्स, ये सब होने चाहिए. एंड वेजिटेबल शुड बी ना गुड क्वांटिटी. आप देखोगे सबसे ज्यादा वेजिटेबल दिए.
तो लाइफस्टाइल डिजीज को देखते हुए आपको बहुत सारा वेजिटेबल्स खाना चाहिए जो कि हरी पत्तेदार भी हो और अदर वेजिटेबल्स भी हो, एंड देन द अदर क्वांटिटी यू कैन सी इज ऑफ फ्रूट. सो दिस बिकम्स अ बैलेंस डाइट. और साथ में आपने देखा कि हेल्दी ऑयल भी होना चाहिए. हेल्दी ऑयल मीन्स मोनो और मतलब हर तरह का ऑयल, थोड़ा रिफाइंड ऑयल यूज करिए, थोड़ा आप मस्टर्ड ऑयल यूज करिए. सो दीज आर हेल्दी ऑयल्स एंड अलोंग विथ वाटर. सो दिस इज अ हेल्दी प्लेट. अगर आपको समझना हो ऑन अ होल कि किसी का हेल्दी प्लेट क्या होता है, दिस इज द हेल्दी प्लेट अकॉर्डिंग टू द लाइफस्टाइल डिजीजेस. मतलब अभी को लेके जिसको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, बीपी की प्रॉब्लम है, मोटापा है, उनका प्लेट ऐसा होना. So I think that's all for today's unit. And now I, welcome all of you with the questions you would like to ask me. Hello, ma'am. Yes. What do you think about that Dikshit diet? वो दिन में 2 ही बार खाना है, फिर वो गैप भी बहुत ज्यादा होता है, और जो लंच है वो उन्होंने 12 to 1 o'clock बोला है, तो एम्प्टी स्टमक फिर ज्यादा रहेगा ना, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं होगा. किसने बोला है? दीक्षित डाइट, दीक्षित डॉक्टर है एक. हाँ हाँ हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग. इंटरमिटेंट बहुत फास्टिंग. हाँ हाँ हाँ. Okay, you are talking about intermittent fasting. yeah. See, intermittent fasting generally I don't give, but ये उस केस में ही okay है जिस केस में people are morbidly obese. Morbidly obese मतलब एक कोई आपके पास 120 kg का आया, तो आप अगर नॉर्मली एक डाइट से कम करने की कोशिश करेंगे तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. ओनली फॉर सच पीपल आई गिव इंटरमिटेंट फास्टिंग. अदरवाइज इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी वे ऑफ लूजिंग वेट. बट जहाँ इतना ज्यादा वेट है, और आजकल लोग बहुत क्विक रिजल्ट मांगते हैं, आप उनको 2 महीने का टाइम, वो आपको 1 महीने का टाइम देके पूछेंगे मुझे कितना वेट लॉस मिल जाए, तो वहां अगर आप बोलते हैं कि सिर्फ 3 kg मिलेगा, वो कहीं और चले जाएंगे. So in that case, this intermittent fasting has come up. Definitely it is not good. I never give it. But yes, कोई अगर 120-130 kg का हो, जिसको morbid obesity बोलते हैं, कि अगर आपके पास कोई आया and इस वेट के साथ और 6 महीने भी वो रहे तो उनको कोई डिजीज हो सकती है, उनकी डेथ हो सकती है, तब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग पे उनको रखते, नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस. डायबिटिक को तो बिल्कुल नहीं. मैम एक क्वेश्चन था, जैसे हमने फूड पिरामिड में देखा कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा है जैसे, पर फिर भी आजकल प्रोटीन पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं. मतलब नॉर्मल कोई भी बात करते तो प्रोटीन खाओ, तो ऐसे क्यों? इसीलिए ना, क्योंकि अगर आप रिकॉल ले तो आप देखोगे, वेजिटेरियन का जरा पूछ के देखो आप, तो आपको पता चलेगा वो लेते ही नहीं है. उनका मतलब हफ्ते में, मैं बोल रही हूँ, मैं पूछती हूँ जब, तो 3 बार दाल होता है. नट्स एंड सीड्स तो भूल जाओ आप, दे डोंट इवन नो अबाउट इट. ठीक है, सोयाबीन तो कभी हो गया तो हो गया. तो उनकी डाइट में उतना प्रोटीन ही नहीं है, तो वो गलत तरीके से हाइप किया गया है कि प्रोटीन ज्यादा लो, प्रोटीन ज्यादा लो. बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जितना चाहिए उतना लो, पर जो चाहिए है ना वो उनको समझ में नहीं आता. वो दिन में एक बार भी प्रोटीन लेते हैं तो बोलते हैं मैंने प्रोटीन लिया. आप दिन में कितने बार कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, और फिर आप दिन में कितने बार प्रोटीन ले रहे हो? एक बार प्रोटीन से कैसे होगा? हफ्ते में 3 बार प्रोटीन से या 4 बार प्रोटीन से नहीं होगा. दैट्स व्हाई पीपल आर सेइंग प्रोटीन ज्यादा लो. बोलने का तरीका गलत है, बट दे मीन टू से दिस. फूड पिरामिड मतलब एक टाइम का है या पूरे दिन में इतना होना चाहिए? पूरे दिन में सर्विंग दे रखा है, वो आप किसी डाइट में इक्वली बांट लीजिए. जैसे पूरे दिन में आपको 6 से 11 सर्विंग दिया है ना सीरियल्स का, मीन्स पूरे डे में 6 to 11 सर्विंग होना चाहिए. एक साथ तो बहुत ज्यादा होता है. इट्स ऑल अबाउट द एंटायर डे. ओके मैम. एनीबडी एल्स? एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी. हाँ, हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से वेजिटेबल में कार्बोहाइड्रेट अच्छे हैं, या प्रोटीन है, या विटामिन है? मतलब ये हमें किसी चार्ट से पता चलेगा या उसकी अलग से स्टडी करनी पड़ेगी?
नहीं, जैसे मैंने आपको बोल दिया ना, रूट्स एंड ट्यूबर्स हैं, तो आप समझ लो रूट्स एंड ट्यूबर्स, जैसे मैंने आपको जब पढ़ा रही थी तो बताया, उसमें स्टार्च बहुत ज्यादा है। तो लाइक आई गिव यू एग्जांपल, जब स्टार्च बहुत ज्यादा है, स्टोर्ड स्टार्च, तो वो आप ओबीस लोगों को नहीं देंगे, वो आप डायबिटिक को नहीं देंगे। ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो है उसमें कैलोरी बहुत कम है, वो आप ओबीस को देंगे, वो आप डायबिटिक को देंगे। तो जैसे मैंने क्लासिफिकेशन दिखाया ना, उसमें सिर्फ रूट्स एंड ट्यूबर्स को आप ध्यान लेके चलिए कि रूट्स एंड ट्यूबर्स जो है वो हम ओबीस लोगों को, डायबिटिक को नहीं देंगे, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल वगैरह जो है वो हम उन लोगों को ज्यादा। बाकी देखिए, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी इज वेरी वास्ट, उसमें बहुत साल लग जाते हैं उसको जानने के लिए। हम लोगों ने 17 साल से वही पढ़ा है, तब आपको एक एक डिजीज में पता चलेगा कि किडनी डिजीज में ये वाला साग नहीं देना है। दैट इज वेरी इन डेप्थ। मैं ये आपको ऑन होल बेसिक बता रही हूँ कि रूट्स एंड ट्यूबर्स आपके पास, देखिए योगा के लिए ज्यादातर आपके पास ओबीस क्लाइंट्स है। You will be having more of overweight, underweight people, certain people like this. You will not get kidney patients for coming to therapy for you. So basically the kind of patients I'm talking about, obese patients ko just avoid roots and tubers. You are free to give everything, but more of green leafy vegetables, because those are low in calories. Okay, thank Okay. you. And specifically underweight ko you give them more roots and tubers, because it has more starch and that will help them gain weight. Okay, ma'am. Thank you. Yes. Any other questions from the previous class? और बाकी लोगों को लग रहा है कुछ समझ में नहीं आया मैडम, कोई बोल नहीं रहा है। हाँ, तो वही मैं बोल नहीं रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आया, एंड आई रियली एंजॉयड द क्लास। Yes, ma'am, it was very well explained, so yeah, there's no need for extra questions. Okay, anybody else, if they have question we can take it, otherwise we can just finish off the session today. Ma'am, you had to share the last time's PDF, वो share नहीं किया है आपने। Yes, I'll do that because I didn't know the mail. I will just ask sir and I will send it on the mail ID. Okay. I hope from the last class by now you know how to measure your BMI and waist to hip ratio. Yes. Yes, So ma'am. can I ask you, Munira, what's your BMI now? Ma'am, it's pretty high. It's around 25. Okay. So how much you need to reduce it to? At least 20, 21. Yeah, come below 23. So if it is below 20 to 23, you are in a good okay BMI this thing. I mean range. All right. So all have calculated. Yes, ma'am. ठीक है, तो जो मतलब अभी स्क्रीन पे नहीं आ रहे हैं, they at least send me a message through chat and also check your waist to hip ratio, so that later maybe you can I will just give you a gist कि कैसे आप एक chart बना सकते हो when you're practicing, so that you can show it to your clients. That's why I'm telling you to calculate and understand and ask me in case you have any problems. So today's section was like this. It's quite a theoretical section. Food groups, nutrients. This is basically a very theoretical topic. Maybe the next topic yes, it will be interesting. So let's see. Okay, this topic there is not much to go ahead more than this in the present topic. But this is a topic which is being taught in any nutrition course all over India, wherever I have taught. मैंने पूना में भी SNDT में पढ़ाया है. So right from Pune to east, everywhere this topic is taught to the nutrition students. I think once we proceed to therapeutic nutrition, it will be interesting for you, क्योंकि वहाँ आप malnutrition और obesity पढ़ें. तो obesity आपको अच्छा लगेगा. diabetes पढ़ेंगे हम, तब आपको interest आएगा. वो थोड़ा interesting topic है. Ma'am, you had asked for assignments, lipid profile, creatinine ratio, and lipid and all that. वो आपने Yes. पूरा. So you have done that? Yes, ma'am, वो किया है.
Yes, so great. If you can just send me forward, I'll ask sir to, send you a mail ID so that you can send it forward. I can check it and I can get back to you. Okay. Okay. Yes. All right. So next class would be on therapeutic nutrition, which is very, very interesting. So basic जो आपको course में है आपके obesity, diabetes and BP. तो मैडम ये बहुत interesting रहेगा. प्रियंका मैडम, हाँ जी. जस्ट पीछे वाला क्लास का थोड़ा सा लास्ट वाला पोर्शन जो ये ब्लड टेस्टिंग वाला था वो सब रिपीट कर दीजिए इन लोगों को. ओके. ये सब क्लियर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा इनके लिए. ओके. जस्ट a second. Screen, I hope is okay. Yes. Okay. So quickly, I'm just taking a recap of health parameters, which we generally take to check the nutrition status of any person. So coming to the clinical concept. Yes. So most importantly, I told you that we take height and weight. हाइट एंड वेट को इंडिविजुअली तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. आप बॉडी मास इंडेक्स करोगे जो कि आप किसी यू कैन असेस वेदर अ पर्सन इज ओवरवेट और अंडरवेट. सो दिस इज अ स्लाइड व्हिच इज शोइंग दैट हाउ वुड यू एक्चुअली कैलकुलेट द बीएमआई. सो आप वेट को केजीस में लोगे. हाइट सपोज 160 सेंटीमीटर है किसी का, सो इट विल बिकम 1.6. सो 1.6 into 1.6. Okay, divided by the weight in kgs gives you the BMI. And this is the chart which is showing you that how much is the BMI range, like underweight. अगर आपका BMI is below 18.5, you are underweight and at risk of disease. The normal BMI range is between 18.5 to 24.9. From 25 to 29, it is overweight. And a BMI more than 30 means it is obesity. Okay, so this is the most important parameter what you take for ये आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी यूटिलाइज कर सकते हैं. आपके पास जो योगा के लिए पीपल आर कमिंग, यू कैन प्रोवाइड देम विद BMI इंडेक्स. स्टार्टिंग में क्या था और बाद में क्या है, एंड व्हेन डू दे स्टैंड. नेक्स्ट इज वेस्ट सर्कमफरेंस. As I told you, it's like from the umbilicus, it should be 0.5 centimeter. Okay. और एक्सपायरेशन में लेना है, यानी सांस छोड़ते वक्त लेना है, ना कि सांस अंदर लेते वक्त. हिप रेशियो, जहाँ हिप का सबसे ज्यादा सर्कमफरेंस हो वहां हम ये हिप का हिप सर्कमफरेंस लेते हैं. ऑलराइट. यू कैन सी दैट जहाँ सबसे ज्यादा विड्थ हो बॉडी में हिप्स में, वहां से हम हिप सर्कमफरेंस लेते हैं. And we calculate the waist to hip ratio. So if the waist to hip ratio is more than 8.5 for women, it means you are at a very high risk of having various diseases like diabetes, cardiovascular disease. If it is below 0.80, it means there is lower chance. For males, if it is below 0.90, there is lower chance. So I think waist to hip ratio, I feel all of you should calculate. And you show me the calculation also in the mail so that I can check it out. हेल्प करेगा क्योंकि योगा काफी लोग कपालभाति करते हैं, ये स्टमक की एक्सरसाइजेस करते हैं, तो यू कैन शो देम कि कैसे आपका कम हो रहा है वेस्ट टू हिप रेशियो. और बहुत योगा का फर्क आता है इसमें. एंड देन द क्लिनिकल पार्ट, is generally by seeing the physical sign. So I was telling you, eyes deke you can understand a person is anemic or not. Nails deke you can find out. Okay, this is generally not done by you. A clinical assessment is generally done by a medical specialist.
but for your knowledge I have put this screenshot कि किसी के गले में यहाँ थोड़ा नोट सा हो तो that can be a goiter. Okay, किसी के pigeon chest हो तो it can be vitamin D deficiency. So those are clinical assessments. Okay, then biochemical assessment, which is blood ka blood test, urine test, at times even stool test. So the blood test which we commonly do to find out nutrition deficiency is hemoglobin. Okay, most commonly hemoglobin test करते हैं हम लोग. Okay, so other than that, just a second. Yes, so this is the initial slide. So first is hemoglobin test, and then you have other like blood glucose, the most common one, lipid profile. So I'll show you this, Other than that, I told you albumin, transferrin. So ये आप देख सकते हैं कि urinary creatinine, vitamin A देखने के लिए we do retinol, serum का iron we test, vitamin D we test. These are generally commonly what we test. So if some patient is coming to you and is telling कि मुझे bone में bone pain है, बहुत body में ache रहता है. Okay, so what are you going to test? You can test HB, hemoglobin test कर सकते हैं, vitamin D test कर सकते हैं, you can test uric acid. Okay, so these are the basic specific lab tests. So albumin is done, but ये ICU condition में देते हैं जब किसी को infection होता है. If we want to know the protein content in the blood, we check albumin. Similarly, transferrin we do to check the iron content. Okay, metabolic panels जो होते हैं उससे हम electrolytes पता करते हैं. It means body में metabolism कैसा चल रहा है. If you have to test that, then we check electrolyte and BUN. BUN I had told you, if you remember. What is BUN? Blood urea nitrogen, creatinine, okay, carbon dioxide and glucose. ये सब check करते हैं metabolism को test करने के लिए. Glucose से क्या पता चलेगा? Carbohydrate metabolism. BUN से पता चलेगा protein metabolism. Creatinine से पता चलेगा again protein metabolism. Why I'm not going in depth now? Because when I teach you individually, these disease, then I will take up. ये मैंने आपको just एक gist दिया था. जब आप disease पढ़ोगे तो मैं आपको एक बार test भी बता दूंगी उसमें again. And lipid panel. Lipid panel means total cholesterol, triglyceride, LDL, HDL, VLDL. And I told you to, remember the normal levels of each. So I told you cholesterol 200 milligram per deciliter होना चाहिए. Triglyceride should not be more than 150 milligram per deciliter. Okay, HDL should be more than 40 because HDL is good protein, good fat. And वो जब मैं heart disease बताऊंगी आपको, then I will teach you. Blood pressure जब chapter आएगा, तब मैं पढ़ाऊंगी because एक साथ, इतना in depth will be difficult for you. और ये जो है ये बहुत specific test है, retinol binding protein, insulin growth factor, ये सब आपको नहीं, उतना depth में जाना है. Most common आप देख लो कि hemoglobin होगा, lipid profile होगा, जो कि cholesterol है, और यूरिया का होगा, और creatinine. That's the most common. और किसी का liver खराब है तो ये होगा ALT and ALP, alanine phosphatase test और alanine aminotransferase test. और bilirubin, all of you know jaundice ज़्यादा होता है, bilirubin test कर. So these are the common metabolic panels and tests. I told you about BUN, blood urea nitrogen, creatinine. ये सब हम kidney की problem में देखते हैं. And calcium and vitamin D हम like I told you, bone का problem हो, joints का हो, arthritis हो, we test calcium, we test vitamin D. And carbon dioxide तब देखते हैं when there is acidosis. Generally a patient in ICU, we will check this carbon dioxide, okay. And glucose, all of you know, blood glucose we check when there is a doubt whether a patient may have diabetes or not. Normal level you must know. अभी इसको बढ़ा के 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कर दिया गया है क्योंकि on an average ही low का ज़्यादा है. Okay, so in that we take glucose, and the confirmatory test is A1C test. So what do we take? This is very important test nowadays. HbA1c. It means कितना hemoglobin के साथ आपका glucose, जितना आपकी body में glucose ज़्यादा होगा उतना आपका HbA1c ज़्यादा होगा. ठीक है? So normal क्या है? 4.5 to 6. Pre-diabetics 5.7 to 6.4.
और अगर आपका 6.4 से HbA1c ज्यादा है, then you are a confirmed diabetic. And that is when, you know, doctor will tell you कि 1 महीने आप डाइट चेंज करके, योगा करके, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके देख लो, अदरवाइज हम आपको मेटफॉर्मिन या किसी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स पे रख देंगे, स्टार्ट कर देंगे. ओके, सो HbA1c इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहले OGTT होता था, ग्लूकोज टॉलरेंस, आजकल HbA1c से हम बता देते हैं. अभी भी OGTT करते हैं, बट इतना जान लो कि किसी का 6.4 से ऊपर है तो दैट पर्सन इज डायबिटिक, और किसी का 5.7 से 6.4 है, दे मस्ट डू योगा, दे मस्ट डू डाइटरी मैनेजमेंट, ताकि वो कंफर्म डायबिटिक ना हो. बिकॉज डायबिटीज एक बार हो गया तो इट इज नॉट रिवर्सिबल. लोग सोचते हैं कि रिवर्सिबल है, डायबिटीज इज नॉट रिवर्सिबल, इट इज ओनली कंट्रोलेबल. So other than that, I told you sodium, potassium, all minerals can be tested in the blood. Okay, phosphorus, ये सब किडनी पेशेंट्स के या ICU पेशेंट्स में हम देखते हैं. इतना डेप्थ में आपको नहीं जाना है, मैंने जो नॉर्मल वाले हैं वो आपको बता दी. ओके, तो स्पेसिफिकली ब्लड ग्लूकोज आना चाहिए आपको, लिपिड आना चाहिए, और ब्लड ग्लूकोज है, लिपिड है, और ये यूरिया का जो टेस्ट है, यूरिन RFT, ये सब आपको पता होना चाहिए. एंड देन इज द डाइटरी असेसमेंट, जो आप लोग नहीं करते हैं, बट यू मस्ट नो कि अगर किसी का डाइट पता करना है तो आप पेशेंट को क्या पूछोगे, नहीं तो आप कैसे पता करो, हाउ वुड यू नो दैट हाउ मच इज द पेशेंट टेकिंग. सो ईदर यू विल टेक 24-hour डाइटरी रिकॉल, यानी आप कोई आपके पास आएगा, यू विल आस्क देम हाउ मच फूड हैव यू टेकन राइट फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू डिनर, कल आपने क्या खाया सारा दिन में. Okay, so this is about 24-hour dietary recall. Food frequency means एक टेबल होता है, उसमें आप पूछ लेते हैं कि आप कितना जनरली सब्जी खाते हैं हफ्ते में, कितना दाल लेते हैं. So that's about food frequency. And एक है डायरी, आप पेशेंट को बोलते हो डायरी मेंटेन करो, आप क्या खा रहे हो. That is known as a food diary technique. Okay, and one is observed food consumption. ये जनरली हम नहीं करते हैं, ये रिसर्च सेटिंग में करते हैं. हम खुद जाके देखते हैं कि इंसान क्या खा रहा है और उसका नाप लिखते हैं, एंड वी डू द स्टडी, बट ये जर्नल हम लोग नहीं करते. सो मोस्ट कॉमनली इफ यू आर डूइंग मेकिंग अ डाइट प्लान, यू विल डू फूड डायरी टेक्निक. मतलब आप अपने कस्टमर क्लाइंट को बोल दोगे कि डायरी मेंटेन करो, आप क्या खा रहे हो, सो दैट इट हेल्प्स इन वेट लॉस. फिर उसको आप चेंज कर सकते हैं. एंड 24-hour डाइटरी रिकॉल, कि आपने कल सुबह ब्रेकफास्ट से डिनर तक क्या खाया, so that you get an idea कि इनका journal diet कैसा रहा. So this was all about the nutrition assessment, which is done for finding out the nutrition status of any person. These are all the health checkups. So any questions in the previous presentation, or if you want me to repeat any slide or ask anything? No, ma'am. It's clear to all of you? Yes, ma'am. Okay. Okay, thank you, madam. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am.